My dear students, today I am giving a lecture regarding the topic relations, which is a syllabus of ICSE class 11th as well as CBSE class 11th also. Okay, but chapter it may be different. So, first of all, before going to start our main topic, that is relation, there is some related topics, that is ordered pair. Okay, यानी रिलेशन से पहले मुझे कुछ और टर्म्स जानने की ज़रूरत है. वी हैव टू नीड स्पेसिफाई द फॉलोइंग टर्म्स. वन इज ऑर्डर्ड पेयर. टू नंबर्स ए एंड बी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर एंड इनक्लोज्ड इन ए पैरेंथेसिस फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर. फॉर एग्जांपल इस तरह से लिख सकते हो, दिस इज ए ऑर्डर्ड पेयर. सो पेयर ए इज द फर्स्ट मेंबर और फर्स्ट कंपोनेंट एंड बी इज कॉल्ड सेकंड मेंबर और सेकंड कंपोनेंट. Okay, so ordered pair means a specific order and enclosed in a parenthesis. Okay, by interchanging the component, for example a b does not equals to b. अगर हम ये ऑर्डर पेयर का जो सीरीज़ है लिखने का, उसको अगर हम इस तरीके से लिखें ए बी और इधर लिखेंगे बी ए, इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल्स टू. बिकॉज इसको इस तरह से समझ सकते हो, सपोज करो कि ये कोई ग्राफ है, ग्राफ में दो पार्ट है, सपोज करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. तो यहाँ पे अगर हम कोई भी पॉइंट हमें दिखाना है, सपोज करो ए की वैल्यू अगर 2 3 है तो बी की वैल्यू क्या होगी 3 2, अगर इस तरह से लेते हैं तो. लेकिन जब इसको हम ग्राफ में दिखाएंगे, सपोज करो 1 2 3 4, इधर है 1 2 3 4. अगर इस तरह से दिखाओगे तो क्या होगा 2 और 3, 2 के सामने ये 3, दिस इज अ पॉइंट ए बी को ये शो कर रहा है. लेकिन अगर हम बी ए की बात करें 3 2, तो 3 के सामने 2, ये क्या है, ये है तुम्हारा बी पॉइंट बी ए. ओके, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है ना. यानी अगर इंटरचेंज कर देंगे वैल्यू, दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल्स टू वन अनदर. यानी एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होगा ऑर्डर्ड पेयर में. ओके, इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है, और बी की वैल्यू भी हमने सेम रखा है 3 और 2, तो यहाँ पे ग्राफ पे दोनों का पोजीशन क्या है, चेंज है. ओके, नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ए एंड बी व्हेन a minus 1 comma b plus 1 equal to 2 comma 3. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, अगर ऑर्डर पेयर के उसमें देखेंगे, अगर इक्वलिटी के हिसाब से, इट मीन्स a माइनस 1 इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 2 प्लस 1 यूजिंग इक्वलिटी रूल्स. सिमिलरली b प्लस 5 इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 3 माइनस 5 मीन्स माइनस 2. दिस इज द राइट आंसर फॉर a एंड b. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, फाइंड ए एंड बी व्हेन 2a plus b comma 11 equal to 1 comma a minus 3b. This is also based on equality of two ordered pairs. Okay, this question is also based on equality of two ordered pair. So solution, using the definition of equality of two ordered pair, we have 2a plus b equal to 1 and a minus 3b equal to 11. Now after calculating it, so b will first equation that will multiplied by 3, then it will become 6a plus 3b equal to 3, a minus 3b equal to 11. Now adding 1, this will cancel, 7a equal to 14, value of a that is 2. Now putting the value of a either in equation 1 or 2. Putting the value of a in equation 1, then it will become 2a plus b equal to 1
So in place of you have to write 2, 2 into 2 plus b equal to 1, or b equal to 1 minus 4, that is equal to minus 3. So right answer a equal to 2 and b equal to minus 3. Okay. Next question हमारा express x, y, that x square plus y square equal to 25. This is a condition one where x, y is a member of w, that is a whole number, is a set of ordered pair. So according to the condition we know that that is easily we can detect that x or y what number will be. For example, 5 whole square plus 0 whole square, that will equal to 25. So in place of x we have write either 5, and in place of y you have to write 0. Again for x equal to 0 plus 5, this will also equal to 25. Easily we can check the value for x and y, that is equal to either 5 or 0. Okay, so next value is, for example, this is 3 whole square plus 4 whole square. This will equal to 9 plus 16. 9 plus 16, this will equal to 25. Again 4 square plus 3 square equal to 25. Both the conditions satisfied that x square plus y square equal to 25. So value that will equal to ordered pair, that is either 5 0 or 0 5 or 3 4 or 4 3. So these are the set of required ordered pair. These are the set of ordered pair that is required. ये आपका ऑर्डर पेयर होगा, क्योंकि इसमें जो कंडीशंस दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी दोनों के स्क्वायर करने पर सम होना चाहिए 25. सो वी कैन इजीली डिटेक्ट द वैल्यूज फॉर दीज एक्स एंड वाई. ओके. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स. व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? लेट ए एंड बी आर टू non-empty set, then the Cartesian product of A and B is written in the form A cross B, consisting of all ordered pairs such that A is a member of capital A and B is a member of capital B. Or we can write like that: A Cartesian product B equal to AB, such that A is a member of A and B is a member of B. Okay. If number of A equal to P and number of B equal to Q, then the number of Cartesian product members, that is P into Q, or number of Cartesian product B cross A equal to PQ. Okay. Next question हमारा है based on Cartesian product. Okay. A equal to 1 3 5. There are 3 members, and in a B there are 2 members, and you have to find A Cartesian product B and second B Cartesian product A. So solution, we have A Cartesian product B means for A there is a 1 3 5, there are 3 members, and in a B there are 2 component or 2 members, 2 and 3. So A Cartesian product means A into B, that is 1 into 2, 1 comma 2 1 3. Now 3 2 3 3 5 2 5 3. It means total numbers कितने हो गए कार्टेशियन प्रोडक्ट में? 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 6. Okay. नेक्स्ट वन दैट इज B कार्टेशियन प्रोडक्ट A के लिए निकालोगे तो पहले B को लिखिए आप. 2 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट A के लिए जो है मेंबर्स 1 3 5, देन वी कैन राइट 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 and 3 5. Okay, these are the Cartesian product A for A and B. Okay. Next question हमारा है if A equal to 1 2 3, B equal to 3 4 and C equal to 4 5 6, then find the A Cartesian product B intersection C. So first of all
कैलकुलेट द वैल्यू फॉर बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मीन्स दोनों में जो कॉमन है। ऑलरेडी इंटरसेक्शन मीन्स वी नो दैट देयर इज अ कॉमन पार्ट ओनली, सो देयर इज अ कॉमन पार्ट ओनली 4, so b intersection c that is equal to only 4. Now a Cartesian product b intersection c that is equal to 1 2 3, this is the members of a, and members of b intersection c that is only 4, so we can write like this 1 4 2 4 3 4. This is the right answer for a Cartesian product b intersection c. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू x इज अ मेंबर ऑफ n नेचुरल नंबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ओके इक्वल टू 0, ये दिया है कंडीशन. देन b इक्वल टू x इज अ मेंबर ऑफ होल दैट इज 0 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन 2. c इज x इज अ मेंबर ऑफ n दैट इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द वैल्यू फॉर a इन द रोस्टर वन एंड b एज वेल एज c, यानी ए बी सी तीनों के जो मेंबर्स हैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए सबसे पहले. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको ब्रेक कर देंगे. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, कॉमन करेंगे एक्स एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन करोगे x माइनस 3, आइदर x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 3 और 2. ये a के लिए वैल्यू आ गई, यानी a के मेंबर्स कितने होंगे 3 या तो 2, ये होंगे a के मेंबर्स. b के मेंबर्स कितने होंगे, b के मेंबर्स ऑलरेडी बोल रहा है 0 से इक्वल होगा और 2 से छोटा होल नंबर, यानी 0 1, क्योंकि 2 से छोटा तो 1 तक आएगा. नेचुरल नंबर लेस देन 3, यानी c में तुम्हारा आ जाएगा 1 2 3. ये तो तुम्हारा आ गया ए बी सी के लिए रोस्टर फॉर्म में ये सारे नंबर्स. अब हमें वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी यूनियन सी निकाल लेते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज बी यूनियन सी. बी और सी को मिला दीजिए, तो 0 1 2, दिस इज द बी यूनियन सी. देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C, और A में कितने मेंबर्स हैं 2 3, और B यूनियन C में कितने हैं 0 1 2. अब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लीजिए 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2. मीन्स 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6. ये आपका आ गया ए कार्टेशियन बी यूनियन सी. और दूसरे पार्ट में हमें निकालना था ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी. ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है 3 2 है, क्रॉस इसको बी के साथ करना है यानी 0 1, और इसका यूनियन लेना है. ए की वैल्यू है फिर 3 2, क्रॉस करना है सी के साथ यानी 1 2. ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका ये बनेगा 3 2 3 0, फिर आ जाएगा आपका 3 1, इसके बाद आ जाएगा 3 1, इसके बाद आ जाएगा 2 0, इसके बाद आ जाएगा 2 1. फिर यूनियन इसमें निकालना है, ये आ जाएगा 3 1, और हो जाएगा 3 2, देन अगेन 2 1, देन अगेन 2 2. अब इसके कॉमन दोनों में यूनियन करना है, यानी कि सारे उसको हमें कॉमन फॉर्म में लिखना है. तो 3 0 3 1 दोनों में कॉमन कौन कौन है से वो लिख लीजिए. एक तो 3 1, फिर एक ही बार आ जाएगा 3 0 भी आ गया, फिर आपका आ गया 2 0, फिर आ गया 2 1, उसके बाद आ जाएगा 2 1 के बाद 2 2,
उसके बाद आ जाएगा 3 2, ये हो गया। कितने नंबर्स हो गए इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने आए थे, 1 2 3 4 5 6। अब इसको टैली कर लेते हैं। 2 0 मिल रहा है, 2 1 भी मिल रहा है, 2 2 आपका मिल रहा है, 3 2 मिल रहा है, 3 1 मिल रहा है और 3 0। इट मीन्स कि A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके।